नमस्कार बच्चों, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास. So far we have discussed in our chapter light, we have discussed the image formation by concave mirrors. Okay, so today we will see the image formation by convex mirrors and uses of these spherical mirrors and mirror formula. Okay, then about refraction we will talk about refraction in next video. Okay, and also we will discuss today this new Cartesian sign convention. Okay, so how the image is formed in convex mirror. There are only two positions. Okay, in convex mirror दो ही positions है. First, when the object is at infinity, the image is formed at focus behind the mirror. It is highly diminished, virtual and erect. Okay, so how the image is formed? See, in case of convex mirror, always we place the object on the left. ये ध्यान रखिए, हमारे कन्वेंशन में अभी आप 10th के सिलेबस में always the incident ray we assume the incident ray coming from left to right. Okay, and in this way the object is placed at infinity, so the light rays are parallel and after reflection they are diverged. Okay, convex mirror is diverging mirror. ये डाइवर्स करेगा एंड इन अ वे दैट these rays are seems to be coming from a common point, that is the principal focus of that mirror. Okay, so in parallel rays की, इस ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज आ रही है, इनकी जो इमेज एक शार्प फाइन इमेज, छोटी सी इमेज बनेगी. कहाँ पर बनेगी? बिहाइंड द मिरर एट प्रिंसिपल फोकस. एंड गेस हाउ इज दिस इमेज? इज इट virtual or real? Yes, it is virtual because these reflected ray, they do not meet actually, but they seems to be meet, they seems to be coming from a common point. So इस तरह जब ये actually meet नहीं होती है तो virtual image बनेगी and this virtual image is always erect. Okay, and in this case the image is highly diminished. So infinity पर होगी ऑब्जेक्ट. इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि इस कॉन्वेक्स मिरर से उसकी डिस्टेंस डेफिनेट हमें पता नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट हमें पता नहीं है. तो इस केस में वो लॉन्ग डिस्टेंस है तो फोकस पर ही बनेगी. दूसरा केस क्या होगा कि जब एक डेफिनेट डिस्टेंस पर इस मिरर से ऑब्जेक्ट जो है एक डेफिनेट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, इस केस में व्हाट विल हैपन? दिस वी विल एज्यूम a parallel ray coming a ray coming parallel to this principal axis, and how will it be reflected? Yes, it will reflected in such a manner that it will seems to be coming from principal focus. दूसरा एक और ऑब्लिक रे ले लीजिए, या यहाँ पर देखिए क्या केस लिया हुआ है कि ये जो रे है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट हो रही है. इट इज इंसिडेंटिंग इन द डायरेक्शन of the center of curvature. So just remind, how will it be reflected? Okay, center of curvature की ओर अगर आ रही हो convex mirror में तो same path में reflected back हो जाती है. Okay, so actually the distance is increasing, so they will not meet actually at any point. इधर ये reflected rays कहीं पर meet नहीं होगी, but it seems that they are coming, they are meeting here. So virtually they are meeting here, so the virtual image is formed here. क्योंकि actually meet नहीं हुई तो ये virtual image होगी and you see the image is erect and the size is smaller. Okay, so what is the nature of image? It is erect and virtual. What is the size? It is diminished. What is the position? It is behind the mirror. Okay, so these two cases are there for various positions. So image formation के दो ही positions है convex mirror में.
या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, काफ़ी डिस्टेंस पर होगा, या कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि इधर कोई पोल तो यहाँ पर है बट इधर कोई फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का अपोजिट साइड होता है। ओके, सो ये दो केसेस है सिंपल, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स सी द यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ देखिए, कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके सामने मिरर लगा होता है। नो, सामने अगर मिरर रहेगा तो ये लाइट पास कैसे होगा, सामने तो ग्लास ही है, बट ये कॉनकेव मिरर कहाँ पर होता है, इस बल्ब, टॉर्च के बल्ब के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा होता है कॉनकेव शेप का, या सर्च लाइट्स में पीछे, लाइट के पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है, या स्ट्रीट लाइट में आपने देखा होगा कार के हेडलाइट के पीछे ये जो बल्ब के पीछे जो रिफ्लेक्टर है, ये होता है कॉनकेव मिरर, जो क्या करता है, और ये बल्ब का पोजीशन क्या होता है, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा होता है ये बल्ब। तो यहाँ से जो लाइट रेज जो पीछे की ओर जाती हैं, सामने से तो जाती हैं, और जो लाइट रेज पीछे की ओर जाती हैं, दे आर आल्सो बीइंग प्रोजेक्टेड पैरेलल। ओके, रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर क्या है, फोकस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को, फोकस से आ रही रेज को पैरेलल प्रोजेक्ट कर देता है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफाइड लाइट बीम हमें मिल जाता है सामने। तो कॉनकेव मिरर का टॉर्च, सर्च लाइट्स और कार के हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर के रूप में इनका यूज़ होता है। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ओके, हम सलून वगैरह में जो देखते हैं वो मिरर भी वो स्लाइटली कॉनकेव मिरर होता है, और हमारा जो सिटिंग पोजीशन होता है वो होता है फोकस और पोल के बीच वाला सिचुएशन। जो चेयर होती है वो उसके फोकस से पास में होती है। इससे क्या होगा, हमें उसके अपोजिट साइड वर्चुअल और एनलार्ज इमेज, हल्का सा एनलार्ज इमेज दिखेगा, जिससे फेस डेफिनेशन अच्छा आता है। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ। ये डेंटिस्ट के जो बैक साइड टीथ की एनलार्ज इमेज देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, और ये सोलर फर्नेसेस में भी यूज़ होता है, और कंसनट्रेटर टाइप सोलर कुकर्स में भी यूज़ होता है, ताकि ये सनलाइट की जो बीम्स को एक जगह पर फोकस कर सके रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये यूजेस हैं कॉनकेव मिरर्स के। ओके, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर, मीन्स साइड ग्लास। व्हीकल्स के साइड ग्लास में पीछे का एक इरेक्ट और छोटा सा एक लार्ज एरिया का व्यू हमें मिल जाता है, तो व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। Okay, convex mirrors are used as rear view mirror in vehicle. Convex mirror give erect diminished image of object. They also have a wider field of view than plane mirrors. अगर यहाँ plane mirror का यूज़ करेंगे तो बहुत छोटे से पीछे पूरे रोड का पूरा सीन नहीं दिखेगा उसका ना, उसका वो वाइडर एंगल नहीं देख पाएंगे हम प्लेन मिरर से। कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज नहीं मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ओके, तो इसलिए यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ सिक्योरिटी कैमरास वगैरह में भी किया जाता है, कि वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी कैमरास में भी लार्ज व्यू जो लेना है उसके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट concept is there, new Cartesian sign convention for spherical mirrors. In case of spherical mirrors and spherical lenses, this sign convention is very important. जब हम साइन कन्वेंशन में, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखते हैं, आप ग्राफ पेपर में आप देखते हैं कि टू एक्सिस जहाँ पर मीट होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन ओ। तो यहाँ पर जो पोल का मिरर का या लेंस का मिरर का जो पोल है, इसे ओरिजिन माना जाता है, और इस पोल से लेफ़्ट साइड की जो भी डिस्टेंसेस होगी, हमेशा जो भी डिस्टेंस का मेज़रमेंट होगा वो लेफ़्ट, इस पोल से ही होगा, लेफ़्ट या राइट साइड में। ऑब्जेक्ट रखी होगी लेफ़्ट साइड में, इमेज या तो लेफ़्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस साइन कन्वेंशन।
द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट. ओके, ऑब्जेक्ट को हमेशा इमेज फॉर्मेशन में या न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आएंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे. इनमें जब भी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो वो मिरर के लेफ़्ट में ही रखी जाएगी और उससे जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही प्रोजेक्ट होंगी. ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सारे डिस्टेंसेस जो हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो कहाँ से मेज़र होगी? पोल से ही होगी. ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव. हाँ, यहाँ पर आपका ज्योमेट्री के आपके कोऑर्डिनेट्स की तरह आ गया. ये ग्राफ के जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही होगा. ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लीजिए और यहाँ पर एक इमेजिनरी वाई एक्सिस समझ लीजिए, है ना. इससे आपको एक साइन कन्वेंशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब इस ओरिजिन से राइट साइड की जो डिस्टेंस है, सपोज इमेज इस तरफ कहीं बनी तो इस पोल से इमेज का जो डिस्टेंस लेंगे सपोज 5 सेंटीमीटर है तो ये किधर है? राइट साइड में है. तो ये जो डिस्टेंस है इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी. इसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर रखी हुई है तो पोल के लेफ़्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस होगी उन्हें नेगेटिव डिस्टेंस कहेंगे. अगर पोल से 10 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसके डिस्टेंस को हम कहेंगे -10 सेंटीमीटर. गॉट इट. और अगर मिरर के राइट साइड में इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर पर तो इमेज डिस्टेंस को हम कहेंगे +10 सेंटीमीटर. ओके, डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव, इधर पॉजिटिव. ठीक है. द हाइट मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव. जैसे वाई एक्सिस, अपर वाई एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव होती है. इन दिस केस जब भी कोई ऑब्जेक्ट या मिरर है, कोई भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मेज़र करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस मानेंगे. ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट हम रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर. ऑब्जेक्ट रखिए, सपोज उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कहेंगे +5. और जो इमेज बनी, सपोज वो इन्वर्टेड इमेज है, जितनी भी इन्वर्टेड इमेज है उसकी लेंथ को हम नेगेटिव ही लेते हैं, है ना. प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी इन्वर्टेड इमेज वगैरह है, इन्वर्टेड डिस्टेंस जो भी होगी उसको नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है. The height measured upward perpendicular to the principal axis is taken as positive and the height measured towards downwards perpendicular to the principal axis is taken as negative. तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है. आप ये ध्यान रखिए कि जो मिरर का पोल है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ओरिजिन और इससे लेफ्ट साइड की जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंसेज हैं इन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, इन्हें नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा. राइट साइड में जो है उन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा. इससे ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जितनी डिस्टेंसेज हैं उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा. जो डाउनवर्ड डिस्टेंसेज है दोज आर कंसीडर्ड नेगेटिव. गॉट इट. नाउ मिरर फार्मूला. अभी आप ये फार्मूला वगैरह नोट्स में लिखकर इसे मेमोराइज कर लीजिए. लेटर हम इसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक अलग वीडियो पोस्ट किया जाएगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा क्लियर हो गए. मिरर फार्मूला अभी हमने यहाँ बात की है इमेज के डिस्टेंस की और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की. ओके, सो देयर आर 3 बेसिक क्वांटिटीज़. image distance means distance of image from the pole. okay, and object distance, इस केस में अगर देखें कि ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज बना है और यहाँ पर पोल है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सपोज ये 20 सेंटीमीटर से है ना, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -20 क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है. गॉट इट. अब ये जो इमेज बना ये सपोज 5 सेंटीमीटर दूर बना पोल से, लेफ्ट साइड में ही बना हुआ है, तो ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस. द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस. सो इट इज़ -5 क्योंकि ये भी लेफ्ट में है. ओके,
सो और तीसरी एक चीज़ है, थर्ड थिंग इज फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, that is denoted by small f. Object distance is denoted by small u, image distance is denoted by small v, and focal length, focus is somewhere here, focal length of this mirror is denoted by small f. तो इन तीन क्वांटिटीज में v यानी इमेज डिस्टेंस, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f मीन्स फोकल लेंथ, इनके बीच में ये रिलेशन है दैट इज गिवन हियर, 1/v प्लस 1/u इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f. ओके, इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस, द sum of inverse of image distance and object distance is always equal to the inverse of focal length. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. इसको कभी आप भूलिएगा नहीं. दूसरी एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती है दैट इज़ मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन टर्म से आप समझ रहे होंगे, मैग्नीफिकेशन मीन्स एनलार्जमेंट, हाउ द इमेज इज एनलार्ज्ड. ओके, means suppose the object is of height 5 centimeter and image is formed which having the height 10 centimeter, means what is happening here, the image is enlarged. Okay, how many times? 2 times. This 2 times is its magnification. Okay, so magnification को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? magnification for spherical mirror is the ratio of the height of the image to the height of the object. ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज इट इज डिनोटेड बाय एच आई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज डिनोटेड बाय एच ओ, एंड मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. सो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं. गॉट इट? यहाँ पर एक रिलेशन आप देख लीजिए, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, is more than 1. अच्छा, if value of magnification is 1, what does it mean? कि height of image and height of object is always is same. मतलब वहाँ पर image और object same height की है तो magnification 1 आएगा. रिमाइंड कीजिए कौन से केस में ऐसा होता है कि height और height of object and image is same, है ना? कॉनकेव मिरर के केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हो. यस, तो इन्वर्टेड और सेम साइज का इमेज बनेगा. मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है. हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है दैट विल बी मोर देन 1. ओके, दैट मीन्स अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एंड इफ़ value of magnification is less than 1, it means image is smaller than the object. डिनोमिनेटर बड़ा है तभी मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आएगा. ओके, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा इमेज से तभी इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा. गॉट इट? हाइट के रेशो के अलावा एक और इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशो में भी हम मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. द मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and image distance as follows. Okay, so magnification is equal to image distance divided by object distance. ठीक है, so magnification के ये दोनों फार्मूला हैं, m equals to height of image divided by height of object और image distance divided by object distance. गॉट इट? ये फार्मूले आप लर्न कीजिए, है ना? इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम सेपरेटली एक वीडियो पोस्ट करेंगे. और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे. ओके, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा. ओके, गुड डे.